अक्सर कहते हैं कि आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी कहते हैं, आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी है, ज़मीन चपटी है, ज़मीन तो गोल है। मतलब कौन सी ऐसी आयत का तर्जुमा या पता नहीं किस चीज़ का कोई इस तरीके से मौलवियों ने कुछ इस तरीके से देखें। मौलवियों ने कर दिया हाँ ना, अक्सर कहा जाता है कि आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी है, जबकि ज़मीन बाद में पता चला चपटी नहीं है, तो आपका इस्लाम तो चपटी कहता है। तो किस लफ्ज़ को उसने चपटी कह दिया, किस तरीके से ये कह दिया। एक मैंने मतलब बड़े अफसोस की बात है मुझे कि एक मौलवी से एक छोटा बच्चा बहस कर रहा है कि सर हमने तो स्कूल में पढ़ा है तो उसमें तो ज़मीन गोल है और आपने कहा चपटी है। तो कह रहा है हाँ ज़मीन धरती, देखिए धरती इतनी सी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितने प्लैनेट हैं, पता नहीं कितनी गैलेक्सी है, कितना हमारी सोच से भी बड़ा है। उसके अंदर इतनी सी ज़मीन है, उसके अंदर लोग रहते हैं, वो क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। से स्टार्ट। The universe is a mystery that has always puzzled mankind. How was it created? And who is responsible for creation? In Hinduism, there are many theories about how the universe was created in the earliest days. Let's explore some of them. In Hinduism, the universe is not one single entity. There are an infinite number of universes that are constantly being created and destroyed. In other words, we live in a universe that belongs to a multiverse. A universe will ultimately die, but the multiverse lives on. Lord Vishnu is a personification of this multiverse. According to Hinduism, Lord Vishnu was asleep in the cosmic ocean of all causes before the creation of the universe. His bed is a giant serpent with thousands of cobra-like hoods. The universe was created in a triad of roles: creator, maintainer, and destroyer. Lord Vishnu is the maintainer. Lord Brahma is the creator. Lord Shiva is the destroyer. The universe was created through the actions of Lord Vishnu, who slept and let a lotus bloom from his navel. The lotus stem represents the creation of the universe, while Brahma is found at the flower's center and represents the creator. The time it takes for one universe to be created and the next one to end is also the duration of one breath of Lord Vishnu. When he exhales, thousands of universes come into being and a new Brahma is born in each one. But when Lord Vishnu inhales, all universes get sucked in and Brahma dies. Lord Brahma represents the universe that we live in. He creates all life forms and is responsible for the physical world that we live in. Lord Vishnu is the personification of the eternal multiverse. He is responsible for the continuation of life in all universes. Brahma is the representation of our temporary physical universe, while Vishnu is the representation of the eternal multiverse that exists forever without any beginning or end. The current universe represented by Brahma is not permanent. In fact, it's quite temporary. Brahma only lives for 100 years and then he dies and a new universe will be born. Now, let's talk about time measurements. Brahma lives for 100 years and each year of Brahma has 360 days. And we are currently on the first day of the 51st year of his reign. There are day and night. During the day, Brahma creates life, and during the night, all life he created is absorbed back into him. Therefore, we will only be there for this day of Brahma, which is the first day of his 51st year. But don't be sad. Let me promise you that this is quite a long day. Yug, large units of time. Think of Yug as a unit of time that is measured in thousands to millions of years. The Vishnu Puran, an ancient Hindu text, has details about these Yug measurements.
a Mahayug is made up of 4 sub-yugs that are distributed in the ratio of 4:3, 3:2, 2:1. In a Mahayug, the Kali Yug is the shortest yug and lasts for 432,000 solar years, followed by the Dwapar Yug, which is twice as long as 864,000 years. Then there's Treta Yug at 12,96,000 years, and finally the Satyug, which is 17,28,000 years. So in all, a Mahayug on Earth lasts for 4.32 million years. Manvantar. The next major unit of time after a Mahayug in ancient Indian text is called Manvantar. At the beginning of a Manvantar, new life forms are created, and at the end of it, those life forms are destroyed. This is how the cycle of life goes on in the ancient Indian texts. One Manvantar is said to last for 71 Mahayug, or 71 multiplied by 4.32 million years. This works out to be around 306.72 million years in total. According to these ancient texts, all life on Earth will eventually be destroyed after 306.72 million years of evolution. Interestingly, around 252 million years ago, the Earth experienced its largest mass extinction event. Most species on Earth were killed, including nearly 90% to 96% of all insects. This was also the only mass extinction period of insects on Earth. After each mass extinction of life forms, there is a period of recovery called Sandhikal. This period lasts for one Satyug, or 1.728 million years. According to the latest estimates from modern science, it is believed that it took around 10 million years for life on Earth to recover after the Permian-Triassic extinction event. As you can see, it took our planet 10 million years to get back to its feet after suffering the greatest mass extinction in history. Kalp, day of the Brahma or universe. The universe has a day too. Just like our day on Earth is called Kalp, the time period for one Kalp is said to be equivalent to 14 Manvantars and the Sandhikal. So, there are 14 Manvantars and 15 Sandhikals in a Kalp. During the Sandhikal before the first Manvantar, no life has evolved yet. So, one Kalp equal to 14 multiplied by 306.72 million years plus 15 multiplied by 1.728 million years, which makes it one Kalp equal to 4.32 billion years. On the universal scale, one day is said to be 4.32 billion years long. This day is divided into a period of creation, where life forms are created, and a night period during which no creation takes place. Each of these periods is also 4.32 billion years long. In other words, one day of Lord Brahma on the universal scale is 8.64 billion years long. It's interesting to note that, according to modern scientific discoveries, the oldest life form on the Earth is 4.28 billion years old. Mahakalp. Kalp, a unit at universal scale, is further extended with days and years similar on Earth, so that a month at the universal scale is 30 Kalp, that is 30 universal days, and a year at the universal scale is 12 such universal months. This enables life forms to rise and fall in accordance with the karma they have earned. On the universal scale, 100 years are defined as the lifespan of a universe. This is called a Mahakalp. A universe is said to end at the end of its 100 years of age. So, the lifespan of an entire universe is
8.64 multiplied by 30 multiplied by 12 multiplied by 100 billion years, which totals to around 311.04 trillion years. The ancient Indian texts says that our universe is currently on the first day of its 51st year. During this day, we are in the Kali Yuga of the 28th Mahayuga of the 7th Manvantar. So, we have come to the calculation once again. According to ancient Indian texts, the age of the universe is 50 universal years plus 6 Manvantars plus 7 Sandhi Kal plus 28 Mahayuga. 50 universal years equal to 8.64 multiplied by 30 multiplied by 12 multiplied by 50 billion years equal to 155,520 billion years. 6 Manvantars. 6 multiplied by 306.72 million years equal to 1,840.32 million years. 7 Sandhi Kal. 7 multiplied by 1.728 million years equal to 12.096 million years. 28 Mahayuga. 28 multiplied by 4.32 million years equal to 120.96 million years. So, the age of the universe as per ancient Hindu texts is 157.49 trillion years. Modern science tells us that the universe is around 13.799 billion years old. However, ancient Indian texts predict a much longer timeline. Ancient Indian texts says that the age of the universe is around 311 trillion years. This video is only an attempt to appreciate the great scale of time on which ancient Indians were working. We do not come across any other ancient civilizations that talk in terms of billions or trillions of years of calculations with specific names given to such large periods of time. Like the famous American cosmologist Carl Sagan said in his book Cosmos, the Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long. Longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. Thank you so much guys for watching this video. If you liked जी जनाब, ये थी बड़ी ही अजीबोगरीब कैलकुलेशन। अजीबोगरीब इसलिए कि हमारी नज़र में पहली दफ़ा है, हमने पहली दफ़ा देखी कि हिंदू धर्म ने मतलब एक आम शख्स ये सोचे कि बड़ा कदीमी मज़हब है, बड़ा कदीमी धर्म है, साइंस से इसका क्या वास्ता, इन चीज़ों से इसका क्या लेना देना। साइंटिस्ट कह रहा है कि हिंदू धर्म ने ही इसको समझो एक तरह से सही कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो देखिए धरती इतनी सी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितने प्लैनेट हैं, पता नहीं कितनी गैलेक्सी है, कितना हमारी सोच से भी बड़ा है। उसके अंदर इतनी सी ज़मीन है, उसके अंदर लोग रहते हैं, वो क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने दूर एक प्लैनेट है, फिर उसके बाद दूसरा प्लैनेट है, फिर एक गैलेक्सी है, फिर दूसरी, फिर हज़ारों हैं, इस तरह से कहते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स की एज, इस पूरे यूनिवर्स को किस तरीके से कितने अरसे में दोबारा बनता है और दोबारा फिर बिल्ड होता है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वाकई यहाँ पर विज्ञान है, साइंस है, ये फेल हो जाती है। मतलब साइंस इतना आगे तक नहीं जा पाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर आपको साइंस सपोर्ट नहीं करती, जहाँ पर आपको एक तरह से साइंस की कैलकुलेशन ही ख़त्म हो जाती है। एक इंसान कितना मेजरमेंट कर पाएगा, कितना देख पाएगा, वहाँ पर आपको धर्म साथ देता है, धर्म काम आता है।
और साइंटिस्ट के कहने के मुताबिक कि सनातन धर्म ही ने इसको बाकायदा एक तरह से कैलकुलेट करके एक्यूरेट बता दिया। तो ये मैं यकीन करें, मैं बिल्कुल शॉक, मैं बिल्कुल हैरान कि वाकई ये किस तरीके से पॉसिबल है। बस इतना। हमारे रिलीजन को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे रिलीजन में बड़ी बारीकी है। मतलब एक छोटी सी बात है ना, जैसे पानी पीना भी है, उसमें भी कुछ आदाब हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और जिस तरीक़ेकार से हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए अगर पानी भी पीते हैं तो हमें सवाब मिलेगा, हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, इसका फ़ायदा हमें ही होगा, हमें वो सीखना चाहिए। मैं ये समझती थी कि हमारा जो रिलीजन है उसमें बड़ी बारीकियाँ हैं और जितना स्टडी करो उतना कम है। और क्या कहते हैं, शायद दूसरे रिलीजन बहुत इजी प्लेसेस हैं, लेकिन मुझे सनातन को मैं जैसे जैसे दिन ब दिन जान रही हूँ, दिन ब दिन इसके करीब हो रही हूँ, क्योंकि सनातन किसी अगर ये कहूँ कि किसी सिर्फ हिंदूज़ की मिरास तो नहीं है, वो तो खुद कहते हैं कि आपको समझना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। और सनातन तो सबको अपनाता है, सनातन है सबके लिए एक जैसे ही है। तो जैसे जैसे दिन ब दिन वीडियोस के थ्रू नॉलेज मिलती है, फिर हम जिस तरीके की वीडियोस देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है भाई हमारे मोबाइलों की कि हमें उसी टाइप की चीज़ें दिखा रहा होता है, हमें उसी टाइप की वीडियोस दिखा रहा होता है। तो अब हमेशा मैं तो बोलूँगी अक्सर मुझे इंडियन वीडियोज़ ही दिख रही होती हैं, इंडियन कंटेंट ही दिख रहा होता है। तो उसके अंदर इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो चीज़ें हैं वो भी दिख रही होती हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे क्या बारीकी है। तो मैंने जहाँ तक समझा है सनातन को या हिंदुज़म को, यार इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी है। इसमें मतलब आप ये देखिए कि एक आवाज़ की प्रैक्टिस है, ठीक है, दिमाग की प्रैक्टिसेस हैं, बॉडी को किस तरीके से आपको रिलीफ देना है, बॉडी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या आज हानिकारक है और क्या फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें हैं। योगा के हवाले से ही हम देख लेते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है योगा, आज पूरी दुनिया ने अपनाया है इसे, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? सनातन था, इनका धर्म था। तो मैं ये कहती हूँ इनके धर्म में बड़ी बारीकियाँ हैं अगर उसे समझा जाए। अब आते हैं यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स के हवाले से इन्होंने इसमें वीडियो में भी कहा कि यूनिवर्स एक यूनिवर्स नहीं है, इसमें मल्टीवर्स है, बहुत सारी वर्सेस हैं। और इसको समझना, मुझे पता नहीं क्यों यूनिवर्स का टॉपिक ऐसे भी लगता है कि बहुत समझना बहुत टिपिकल, बहुत मुश्किल सा है, लेकिन बहुत सारी बातें समझ आई आज। जैसे कि जो साइंटिस्ट थे कॉस्मोलॉजी के हवाले से जिन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह की थी, तो वो जानने के बाद उनको ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज हमें दी है, जिस धर्म ने हमें सबसे ज़्यादा बताया है इसके बारे में, जो स्केल्स दिए हैं, जो पैरामीटर्स दिए हैं, जो इतने पहले से ही एक मेजरमेंट्स दे दिए गए हैं, वो सनातन था, वो हिंदुज़म था। मैं इस चीज़ से बहुत हैरान होती हूँ कि किसी फील्ड में कोई भी बातचीत हो रही हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अक्सर मैं देखती हूँ कि हिंदुस्तानी परंपरा या हिंदुस्तानी रिलीजन लाजमी आ जाता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। जैसे हम शून्य की मिसाल ले लेते हैं कि इन्होंने उसको वो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, इससे पहले कभी भी नहीं था। मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, उससे पहले नहीं था। योगा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद रिसर्च बहुत देर से हुई, चीज़ों को बहुत देर से समझा, नहीं तो शायद हमें ये सब चीज़ें, हमें ये सारी कैलकुलेशन, हमें एक छोटी छोटी चीज़, रत्ती बराबर भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हुई थी, सब मिल गई थी, हमें सब कुछ पता चल गया था। यूनिवर्स के हवाले से, दुनिया के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो चीज़ें महज राज हैं उनके पर्देफाश हो चुके थे। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा स्टडी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, देर से इस तरफ आई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, मुझे बहुत पहले सीखना चाहिए था, इन चीज़ों को समझना चाहिए था, इन वीडियोस को देखना चाहिए था, इनकी पेचीदगी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे अब मुझे पता चल रहा है, मुझे एक अट्रैक्शन मिलती है, मुझे लगता है वाकई यार इसके अंदर तो हर सवाल का जवाब है। आप खुद बताइए, उस वक्त लॉर्ड ब्रह्मा के हवाले से उन्होंने बताया क्रिएटर अलग हैं, क्रिएटर अलग हैं, डेथ जो है वो अलग है, डिस्ट्रॉय अलग हैं, लॉर्ड ब्रह्मा भी उन्होंने बता दिया था। इन्होंने भी साइंटिस्ट ने भी जिक्र किया कि रिबर्थ और डेथ का भी उन्होंने जिक्र कर दिया था पहले। तो उसके लॉर्ड हैं, बाकायदा उनके नाम हैं, लॉर्ड विष्णु जो हैं वो अलग हैं। तो मतलब तीनों की एक अलग अलग एक तरीके से ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य है, काम है, और वो निभा रहे हैं। 300 ट्रिलियन जो एज निकाली गई है एक यूनिवर्स की, 300 ट्रिलियन निकाली गई है। बाद में भी उन्होंने बाकायदा अच्छा बड़ी डिटेल में मंत्रा को लेकर, सतयुग को लेकर, सारी चीज़ों को लॉजिक के साथ, फर्जी नहीं, ख्याली नहीं, तस्वुराती नहीं, एक कैलकुलेशन करके और एक फिगर जो आया ना हमारे सामने, तो उससे हमें आइडिया हो गया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सनातन कहता है कि एज अच्छी खासी हो चुकी है अर्थ की और यूनिवर्स की, सॉरी, और जबकि हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो वो ये कहते हैं कि अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 57 के 97 ऐसे कुछ बताया, और इन्होंने बताया 153 शायद 153 या 154 बिलियन ईयर्स।
तो वो सनातन के हवाले से अगर हम चले तो ज़्यादा पुरानी है। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कहते हैं इतनी ज़्यादा एज नहीं है, अभी लंबी चलेगी, अभी लंबी चलेगी, अभी काफ़ी टाइम है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब ये है कि अच्छा, तालीम, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तालीम, शऊर, ये चीज़ें बताती हैं। तो अगर इनके इंसान को अगर ये चीज़ें पता चल जाए कि यार ज़मीन, सैयारे, सितारे, सूरज, इन सारी चीज़ों को उसकी भी कोई उम्र है, उसने भी सब ख़त्म होना है, तो उसके बाद इंसान के अंदर जो गुरूर है, इंसान के अंदर जो तकब्बुर है, मतलब पीके फिल्म में वो नहीं कहता कि यार इतना सा तुम्हारा गोला है, उस गोले के अंदर तुम इतने से हो, और इतने बड़े बड़े गोले हैं पूरी दुनिया में। एलियन थे वो, समझो एक तरह से आमिर खान। तो वो बड़ा एक इंसान को बता रहा था कि उसके बावजूद भी इंसान इतना चोर है, इतना बेईमान है। अगर सोचा जाए कि यार इस दुनिया ने ही ख़त्म होना है, हमने तो ख़त्म होना ही है, इस दुनिया ने भी ख़त्म होना मैं है। एक चीज़ और भी रिलेट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहेंगे, इल्म फ़ल्कियात पे रिसर्च करने के लिए, इसको जानने के लिए बाकायदा दावत दी गई है। कुरान में हाँ, बिल्कुल करे कि आप इसको जानो, आप इसको समझो, इसके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं, उसको ढूंढो। तो हमें बार बार दावत दी गई है, लेकिन हम लोगों का इतना माइंड नहीं होता इस तरफ। लेकिन उन लोगों में तो उनके जो लॉर्ड हैं उन्होंने तो बाकायदा पूरी पूरी चीज़ें मतलब दे दी, बता दी, पीछे के राज बता दिए, क्या कैलकुलेशन है बता दिया, लॉजिकली भी बता दिया, साइंटिफिकली भी बता दिया। तो मतलब कुछ बचा ही नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल कट टू कट क्लियर कर दिया है। और एक बात, मतलब इस वीडियो के नीचे 100% एक कमेंट तो ज़रूर आने वाला है, और कई लोगों का आने वाला है, और इस चीज़ की मेरी भी आज तक समझ नहीं आई, या आप ही लोगों से मैंने सुना या मतलब पता चला कि अक्सर कहते हैं कि आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी कहते हैं, आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी है, ज़मीन चपटी है, ज़मीन तो गोल है। मतलब कौन सी ऐसी आयत का तर्जुमा या पता नहीं किस चीज़ का कोई इस तरीके से मौलवियों ने कुछ इस तरीके से देखे। मौलवियों ने कर दिया तो हाँ ना, अक्सर कहा जाता है कि आपके इस्लाम में तो ज़मीन चपटी है, जबकि ज़मीन बाद में पता चला चपटी नहीं है, तो आपका इस्लाम तो चपटी कहता है। तो किस लफ्ज़ को उसने चपटी कह दिया, किस तरीके से ये कह दिया। एक मैंने मतलब बड़े अफसोस की बात है मुझे कि एक मौलवी से एक छोटा बच्चा बहस कर रहा है कि सर हमने तो स्कूल में पढ़ा है, तो उसमें तो ज़मीन गोल है, और आपने कहा है चपटी है, तो कह रहा है हाँ ज़मीन चपटी है, तो हाँ गोल है। तो फिर आखिरी में वो कह रहा है कि अच्छा पढ़े लिखे लोग, बाकायदा पूरी जमातें चल रही हैं, पूरे दीनी मदरसे चला रहे हैं, लाखों बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, आपको एक चीज़ पर अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं बोलो, बात ही नहीं करो उस बच्चे से। बच्चा उनसे बहस करे, क्योंकि बच्चा स्कूल भी तो जाता था ना, उसको इल्म था, तो मदरसे वाला बच्चे मदरसे में बैठ के उससे बहस कर रहा है। तो मतलब मुझे बड़ी हैरत है, और इस बात का अभी तक कोई वो नहीं है कि यार क्यों मौलवी ऐसा कहते हैं। मैं एक बात बताऊँ, हमारे साथ हुआ क्या है। अब मैं इन लोगों को तो फिर भी ये कहूँगी ये बड़े लकी हैं कि कम से कम मज़हब की बात करते हैं ना, तो अगर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पर्सन है इनका, कोई मतलब बहुत धार्मिक बंदा है इनका, जैसे कि स्वामी जी हैं, या जया किशोरी की बात कर लेते हैं, बहुत स्पिरिचुअल है वो, तो जो जया किशोरी बोलेंगी वही स्वामी जी बोलेंगे, वही एक आम बंदा भी बोलेगा। यानी इनकी जो नॉलेज है ना, वो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट फील्ड नहीं है। इनके यहाँ अगर सच बोलना अच्छी बात है तो सच बोलना अच्छी बात है वो भी बोलेगा, सच बोलना अच्छी बात है वो भी बोलेगा, ईमानदारी अच्छी बात है वो भी बोलेगा। ऐसा नहीं है वो बोलेगा सच बोलना अच्छी बात है, वो बोलेगा नहीं हमारे मज़हब में तो बोला है झूठ बोलना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इतना मैनिपुलेट हो गया है हमारे मज़हब के नाम पे चीज़ों को, लोगों ने अपनी ईगो को बीच में ला के ऐसा कर दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, चाहे वो गलत बोल रहा है। अब एक बंदा कुछ कह रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा बंदा अच्छा आयत जो है ना, आयत का अपने मुताबिक तर्जुमा निकाल लिया है। मतलब जो हमारी आयत है वो एग्जैक्टली आपके माइंड में नहीं आती, उसको समझना पड़ता है, उसकी तशरीह होती है। किसी को फिरके कहते हैं। हाँ, अब किसी ने कुछ तशरीह निकाल ली उसकी, किसी ने कुछ तशरीह निकाल ली, किसी ने कुछ। आपको पता है मैंने परसों एक वीडियो देखी जिसमें कहा कि एक औरत है वो बहुत ज़्यादा उदास हुई, और उसने कहा वो बैठ के रो रही थी शायद, और एक थोड़े से इल्म वाले बंदे थे, वो शादी में थे या किसी जगह पे थे, गैदरिंग थी, तो वो भी उनके बराबर में बैठे हुए थे। तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है और सुना है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं, तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ तो इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। तो वो बहुत ज़्यादा इस बात पे रो रही थी। तो वो कहने लगी कि आप इसका मतलब गलत समझ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये आयत का मतलब माशरती तौर पे ये आयत है कि अगर आप अच्छा करते हो तो आपका वास्ता अच्छे लोगों से पड़ता है, अगर आप बुरा करते हो तो आपका वास्ता बुरे लोगों से पड़ता है। जैसे कि आपकी डेथ हो जाए तो आपके जनाजे में अच्छे लोग होंगे ना जो आपके अहबाब में, बुरे लोग नहीं होंगे। लेकिन एक बुरा इंसान मरता है, एक चोर इंसान मरता है, एक डकैत इंसान मरता है, एक मर्डर मरता है, तो उसके जनाजे में कौन लोग होंगे? वही उसके हल्का अहबाब वाले। तो इस आयत का मतलब ये था। तो फिर वो थोड़ी सी सैड थी, फिर थोड़ी सी हैप्पी हो गई। उसने बोला हाँ मुझे आपकी बात से समझ में आ गया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, नहीं मैं गलत समझ रही। तो हमारे यहाँ ये किया गया है, जो वर्सेस हैं ना उनको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा गया है।
और कहीं मतलब वो था भी नहीं। कहीं जगहों पे आधा बताया गया, आधा नहीं बताया गया, जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। और ये कमेंट्स तो लाजमी आने वाला है ज़मीन वाला, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए खुली दावत हैं कि हाँ भाई आप पढ़ें, समझें, देखें दुनिया को। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मालूमात एजुकेशन से ही आती है, और एजुकेशन स्कूल और कॉलेजों में ही आती है, मदरसों में नहीं आती। मदरसे वाले आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना उनको जानते हैं, जितना वो पढ़ाते हैं। तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन वगैरह होती है। लेकिन बहुत हैरत हुई मुझे इस वीडियो से, बहुत ही 50% से ज़्यादा समझो पल्ले नहीं पड़ी कि इसमें क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन वाकई बहुत डीपली वीडियो थी। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।